7 है ना? 7 फरवरी है कि 8 फरवरी? गुड मॉर्निंग ऑल। That is correct. The last discussion in the last class, I have explained about how to prove that these two lines will intersect and how to find the foot of perpendicular distance and the image of a point with respect to line when a point is given. Okay, these were the last discussions, and I think it was point number 5. Am I right? Point number 5 was this perpendicular distance as well as foot of perpendicular and image. And I told you that in the earlier, in the NCERT book, it will not be given directly. It is given in the another form, not directly given, that find the image with respect to line. And next point is skew lines and the perpendicular and the shortest distance between skew lines. The point number 6 is the last point. Point number 6. Skew lines and shortest distance between two skew lines. See, the definition of skew line is also important. Once it was asked in board exam, define skew lines. And so you can write in your own words that the skew lines are those lines which are neither parallel nor intersecting. So suddenly, then immediately questions come in our mind that how it is possible, sir, when we draw two lines in a plane, either they will intersect or will be parallel. But such lines which are not parallel, not intersecting, means this line will not lie in a same plane. These lines will lie in different planes. Suppose you are drawing one line in the one wall, another line in another wall in your room. Two walls you can take and you can draw the two lines. These lines will not intersect and will not be parallel. So such lines which are neither parallel nor intersecting are known as skew lines. This is the simple definition: neither parallel nor intersecting. They lie in a different plane. Skew lines. Lines which are neither parallel nor intersecting. Lines lie in a different plane. In different planes. तो ये तो डेफिनेशन हो गई लाइंस। जैसे अगर आपको इसको इमेजिन करना है तो यू कैन इमेजिन द लाइक फ्लाईओवर्स आर देयर ना। फ्लाईओवर्स मतलब वो जो ब्रिज बने होते हैं, पुल बने होते हैं एक के ऊपर एक इस तरह से, है ना। एक ऊपर से व्हीकल मतलब कार और ट्रक और ये सब ऊपर से जा रहे हैं, नीचे से ट्रेन जा रही है, या नीचे भी एक और ब्रिज बना हुआ है, फ्लाईओवर बना हुआ, ऊपर भी एक फ्लाईओवर बना हुआ। तो वो इस तरह के होते हैं। देखो ऐसे देखे होंगे आपने, इस टाइप से इधर से जा रही है। जैसे बहुत सारे स्पेशली इंडिया में भी मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में फ्लाईओवर, बट स्पेशली जापान, चीन और इसके जो वीडियोस आती रहती है यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर, आप देखते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया। तो उसमें आप देखेंगे फ्लाईओवर्स बने हुए इस तरह से, एक ऊपर और एक नीचे बने हुए।
तो वो फ्लाईओवर्स जो है वो स्ट्रेट लाइन मान लो इन टू डिफरेंट प्लेन, मतलब कैसी स्क्यू लाइन है वो स्क्यू लाइंस। 3D में लाइंस तो है बट वो ऐसी हैं जो ना तो इंटरसेक्ट कर रही है और ना ही पैरेलल है, ऐसी रहती है। तो इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस के लिए ही एक वर्ड बना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। मतलब अगर लाइन स्क्यू नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं होता। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड यूज हो रहा है मतलब वो किसके लिए होता है, स्क्यू लाइंस के लिए यूज होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, और हमें वही पढ़ना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पर डेफिनेशन भी पूछी हुई है, 2 मार्क्स इतना सा लिखने का, तो दोनों डेफिनेशन लिखेंगे आप। दीज आर द टू लाइंस, skew lines here. First we are writing in vector form. As I told you earlier also, we are writing vector form and as well as Cartesian form. So first vector form, let us suppose this first equation of line is a1 plus lambda b1. Of course this is passing through the a1 and parallel to b1. This b1 parallel to b1 and passing through the one point with position vector a1. And another line is r vector equal to a2 plus mu b2. This line will be parallel to b2 vector, okay, and passing through the point a2 a1. This is a2 vector. This line pl, which is perpendicular to both the lines pl, this is known as shortest distance. It is not sweet dream in your language, and you are in the Instagram and all in the on the WhatsApp SDSD. This is shortest distance. It is abbreviation of short form of shortest distance. We can use in exam also. SDSD you can find in the book also, many books you can find the SD is shortest distance. So shortest distance SD equal to perpendicular distance between two skew lines. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की ये डिफाइन है, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट आर द स्क्यू लाइंस, दोनों मिलाकर 2 नंबर, देन फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया, मतलब एक फॉर्मूला है डायरेक्ट जिससे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आ जाती है तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है, जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बताते हैं, लेकिन उसके अंदर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड कर पाते हैं, बट इन दिस थ्योरी वी कैन नॉट फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन ऑर्डर टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज वेल एज इंटरसेक्टिंग लाइन, वी यूज द प्रीवियस वन थ्योरी दैट ऑलरेडी डिस्कस्ड। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस को फाइंड करने के लिए देयर इज वन डायरेक्टली फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक्चुअली देयर इज method known as scalar triple product, but is removed from the syllabus and not important for the other chapter also, so I did not teach you. And using that concept, but I written in the dot product, a dot b cross c, something a cross b cross c, and something was written there, and I told you this is defined, this is not defined, triple product of the vectors. But here I am just explaining you with the help of I'm not explaining you with the help of the scalar triple product because it is not in syllabus. Earlier it was in syllabus. So how to find the shortest distance? This is the notation of scalar triple product. You can write in exam if you want, no problem. No one will going to deduct the marks if you will write this notation. This is the notation for the scalar triple product. Or directly, if you don't want to write this, you can write a2 minus a1, because the meaning of this is nothing but a2 minus a1 dot b1 cross b2. This is the, and divided by b1 cross b2. So b1 cross b2. This is the formula which is used to find the shortest distance between two skew lines. Directly formula is given, you have to use the formula, no proof is required, because in class 12th of vector algebra we need to use the formula to get the shortest distance between two skew lines. Actually shortest distance अगर 0 हो जाएगी तो मतलब वो तीनों lines coplanar हो जाएंगी, sorry, vector a, b and c. There is a theory related to the scalar triple product and we don't know that theory, so in order to prove these all these concepts we need that theory also. For 4 marks questions we are not going to study all these theories which is not in the syllabus. So using that concept only and use the mod, because this is the distance.
How to find B1 and B2? It is given from the question only. A2, A1 given in the question only. How to get A2 minus A1? Subtraction of the two vectors. IJK form you will get B1 cross B2. All of you know how to find B1 cross B2. Can anyone tell me right now? You can message. How to find B1 cross B2? Out of 70 students in the class, please at least one student can give the answer to find B1 cross B2 if you are live with me. Yes, Ankit Saluja has given the answer determinant because cross product is a determinant. First row IJK, second row components of B1 vector, third row components of second vector. Then you can solve. You will get in terms of IJK, then take dot product with II, JJ, KK. You will get one number in numerator and denominator also mod of B1 cross B2. So this entire result will come a real number. Okay, so it is not equal to 0. If it is equal to 0, then the lines will be intersecting line. They will be coplanar. That I am writing in the remark. First, this is shortest distance formula for shortest distance. See how that man is shouting now. आई एम सॉरी, वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, बीच में आवाज आ रही है, लोहे वाला आया है, बीच में सब्जी वाला भी आता है, अब क्या करें, उनको भी इतनी जोर से चिल्लाना पड़ता है कि उनकी आवाज सब तक पहुंच जाए ताकि सब्जी वाला सब्जी खरीद ले, लोहे वाला जो आया है तो आसपास वाले कोई पड़ा हो तो बेच दें, रद्दी वाले हम उनको पता है कि ये दिन है, बोर्ड एग्जाम के आसपास के फिर भी आ रहे हैं, उन्हें पता है इस समय तो बच्चे पढ़ते हैं, इस समय कोई रद्दी थोड़ी बेचेगा, है ना, इस समय तो बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी, तो उनको पता थोड़ी है, कि उनको पता ही नहीं है एजुकेशन से मतलब, इसलिए तो रद्दी वाले हैं, वो किसी भी समय आ जाते हैं, वो दिवाली के समय आना चाहिए उन्हें, उस समय हम निकालते हैं, वो पुरानी जुलाई अगस्त में नई नई बुक खरीदते हैं ना, जिसका यूज नहीं होता तो उसी समय मम्मी भेज देती, उसके बाद पता लगता है अरे मम्मी भेज दी क्या, वो तो मैं अब पढ़ती जुलाई में, अब पढ़ता जुलाई में, इसमें मार्च में, और अभी आ रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलो ठीक है, छोड़ो उन चीजों को। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर 0 आ गई तो क्या हो जाएगा, लाइंस इंटरसेक्टिंग हो जाएगी, कोप्लेनर हो जाएंगी, ये रिमार्क में लिख लेते हैं हम, रिमार्क। If shortest distance equal to 0, lines are coplanar, intersecting, ठीक है, B1 is not parallel to B2, B1 और B2 पैरेलल नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगर ये पैरेलल हो जाएंगे तो लाइंस पैरेलल भी हो सकती है ना, क्योंकि अगर लाइंस की शॉर्टेज डिस्टेंस 0 आ रही है तो वो इंटरसेक्ट करेगी और B1 B2 पैरेलल नहीं होना चाहिए उस कंडीशन के अंदर। शॉर्टेज डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, वो लाइन इस पर से कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, अभी जैसे पुल ऐसे बने हुए थे, ब्रिज फ्लाईओवर ऐसे थे, वो ऐसे हो जाएंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस खत्म हो जाएगी तो लाइन का इंटरसेक्ट करना जरूरी है, तो B1 और B2 पैरेलल नहीं होना चाहिए उस कंडीशन में। टेक द स्क्रीनशॉट। डन। अनिमेश स्क्रीनशॉट, मार्क अनिमेश। गुड। Now this is, we turn into the Cartesian form, reduce in the Cartesian form. For the Cartesian form, this equation will become x minus x1 upon a1, y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1 equal to lambda। a1 b1 c1 क्या है, DRS। x minus x2 upon a2, y minus y2 upon b2, z minus z2 upon c2 equal to mu a2 b2 c2 DRS। We can use the DCS also sometime, L2 M2 N2, L2 M2 N2 DCS. Together I am writing in place of this, we can write L1 M1 N1 also, because I told you the equation of lines may be given in the form of L1 M1 N1 means DCS, or may be given in the form of DRS. So L1 M1 N1 or L2 M2 N2 may be used. In such condition,
shortest distance will be given by the following formula. Actually, when we solve this a2 minus 7 dot b1 cross b2 by the theory of scalar triple product, it's reduced in determinant. So there is directly formula and very good and very easy formula, and many times you will find the questions are asked in exam based on the shortest distance. The formula is x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. From where you will get x2 x1, y2 y1, z2 z1? From this x1 y1 z1 y1 and x2 y2 z2 from 2. And how to get that already explained when I was explaining the concept of straight line, first day theory of straight line, 1 point form and 2 point form. वहां मैंने आपको बताया था कि x माइनस होना जरूरी है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और माइनस का साइन होना चाहिए, तब जाकर डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है वो a1 b1 c1 होती है, और x माइनस y माइनस z माइनस के बाद जो होते हैं वो DRS होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं. अगर इनके स्क्वायर का सम 1 है तो वो DCA से, और अगर स्क्वायर का सम 1 नहीं है तो वो DRS है. ये भी सब समझा दिया है पहले, एक बार और बोल दिया है अभी यहाँ पर. इसके बाद आपको चाहिए a1 b1 c1 मींस DRS by 1 and DRS by 2 होल डिवाइडेड बाय, अभी आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा था, b1 क्रॉस b2 और उसका मॉड, मतलब क्या होगा, एक लेंथ आएगी ना, तो वो क्या आती है लेंथ, एक लैग्रेंजेस फॉर्मूला आती है, मतलब ये आती है a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर with root. This is with mod. The shortest distance equal to. This is the formula. थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, दिखने में बड़ा है लेकिन यूज करने में नहीं है, क्योंकि डिटरमिनेंट है वो, तो डिटरमिनेंट को बड़ा ही बनाना पड़ता है अपने को यहाँ पर, क्योंकि इस तरह से टर्म्स लिखी हुई तो दिख रहा है ऐसा है वो, x2 x1 y2 y1 यहाँ से पुट कर देंगे, डिटरमिनेंट और डिनोमिनेटर में ये, इसलिए इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी याद रखवाता हूँ स्टूडेंट को, d by l. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला स्टूडेंट ऐसे याद रख सकते हैं d by l, बस d by l रहेगा ना तो भी आपको एग्जाम में याद आ जाएगा d by l. डोमेस्टिक लाइन, इसका नाम मैंने दे रखा है डोमेस्टिक लाइन. डोमेस्टिक लाइन का मतलब समझते हैं, कितने स्टूडेंट को मालूम है डोमेस्टिक लाइन एंड कमर्शियल लाइन इन इलेक्ट्रिसिटी? मालूम होगा कुछ बच्चों को, तो कोई एक बच्चा बता दो ताकि उससे मुझे समझ में आए कि मेरी बात कुछ स्टूडेंट को समझ में आई है, मतलब सबको आ जाएगी, फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. डोमेस्टिक लाइन एंड कमर्शियल लाइन इन इलेक्ट्रिसिटी. एनीवन इज नोइंग? क्लास 12 स्टूडेंट आर हियर? बहुत सारे, यस, वेरी गुड हार्दिक. इंडस्ट्रीज और बिजनेस पर्पज से जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है उसको कमर्शियल लाइन बोलते हैं, और जो अपने घरों में लाइट चलती है ना, आप देखना आपके मीटर के ऊपर DL लिखा हुआ कहना के साइड में, वो होती है डोमेस्टिक. उसका चार्जेस कम होते हैं डोमेस्टिक लाइन के, और इलेक्ट्रिसिटी वाले जो कमर्शियल होते हैं उसके चार्जेस ज्यादा होते हैं. ये तो बात मैंने फालतू की बोली, आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं, मुझे पता है. ऐसी चीजें बोलने से हमारे माइंड में एक और रिलेशन बैठ जाता है जो हमको बाद में हेल्प करती है इन फॉर्मुलों को रिमाइंड करने में. DL डोमेस्टिक लाइन, और हाँ सर ने कुछ बताया, याद आ जाता है बस, और कुछ नहीं है ना. तो आप कुछ लोग इसको उड़ाते भी हैं, कोई बात नहीं, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है बच्चों का बाद में रिस्पॉन्स क्या आता है, उसी से मेरा कॉन्फिडेंस बना होता है और मैं शेयर करता हूँ ऐसी चीजें. सो आई डोंट केयर. ओके, जिसको बुरा लग रहा है कोई बात नहीं, भूल जाना, अपने हिसाब से याद रखो. तो D से मतलब है डिटरमिनेंट और L से मतलब है लैग्रांजेस. एक्चुअल मीनिंग ये है डोमेस्टिक लाइन, D मतलब डिटरमिनेंट और L मतलब लैग्रांजेस. ये लैग्रांजेस आइडेंटिटी है, बहुत पहले बता दी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, है ना. दिस माइनस दिस अपन जो डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, उनका स्क्वायर का वही टर्म है, ये समेशन लगा हुआ है. a1 b2 माइनस a2 b1 b1 c2 माइनस b2 c1 a1 c2 माइनस a2 c1 स्क्वायर और फिर बीच में प्लस. ये टर्म लैग्रांजेस आइडेंटिटी होती है रूट के साथ, और इसका मतलब होता है साइन थीटा. देख लेना आप, साइन थीटा लिखा हुआ है पहले इन क्रॉस प्रोडक्ट. L का मतलब लैग्रांजेस, साइन थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है इसका. समेशन का मतलब मैं 3 बार टर्म नहीं लिख रहा हूं, इतना तो आपको पता है. समेशन 2-2 3-3 बार, मैं 11th क्लास में भी बता चुका हूं समेशन नोटेशन, जब जीपी पढ़ा था, है ना. समेशन A लिख दिया मतलब A प्लस बी प्लस सी होता है. समेशन A स्क्वायर लिख दिया मतलब A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तो साइक्लिक ऑर्डर में चलता है 3 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए और 3 कॉन्स्टेंट्स के लिए बोल सकते हैं उसे. और D का मतलब है डिटरमिनेंट. If shortest distance equal to 0, then the lines are coplanar or intersecting.
हम इसमें लिख देंगे A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। उसमें लिखा था पैरेलल नहीं है, तो ये पैरेलल की कंडीशन होती है ना, तो पैरेलल नहीं है। अगर लाइंस पैरेलल है तो एक और रिमार्क है, वो मैं लिख रहा हूं। अभी तुमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस दी है, अब हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पे आएंगे। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। वेट वेट वेट, यहां मैंने वो नहीं लिखे पॉइंट्स इनके, वो भी लिख देता हूं। अब स्क्रीनशॉट लो आप। वेट प्लीज, x2, क्योंकि ये सब चीजें दिखना भी चाहिए क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या हैं ये। ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 पॉइंट्स। अब लो आप इसका स्क्रीनशॉट। अनिमेश, वाहक, टेकन, ओके। See this page number 476. There is one formula, distance between the given parallel lines. Distance between parallel lines. Distance between the parallel lines. Parallel and distance. Shortest word नहीं लगा हुआ है। पेज नंबर 476, पेज 476 एनसीईआरटी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं वर्ड यूज किया हुआ है इसने। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पेज नंबर 475 476 475 476 दोनों पेज पे मिलेगा ये फॉर्मूला आपको। जब अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड नहीं है, मतलब पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तब आपके पास ये जो इक्वेशंस होंगी, स्ट्रेट लाइन a1 प्लस लैम्डा b1 एंड v1 की जगह b आ जाएगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं लाइंस, तो दे विल बी पैरेलल टू द वन वेक्टर b। लाइक दिस इज b, दिस लाइन a, r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b एंड r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b। इक्वेशन नंबर 2, this is the distance both are parallel to b vector. So this formula distance, this distance is given by tp equal to distance between the two lines which are not skew lines. नोट करना है इस बात को, नॉट स्क्यू लाइंस, ओके, नॉट स्क्यू, ये स्क्यू लाइंस नहीं है। डिस्टेंस pt इक्वल टू d इक्वल टू डिस्टेंस pt इक्वल टू मॉड b क्रॉस a2 माइनस a1 होल अपॉन मॉड b। प्लीज 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 इसको जरूर ध्यान 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 देना, क्योंकि एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ 4 नंबर का, और स्टूडेंट बहुत ही बुरी तरीके से इस क्वेश्चन का एग्जाम में कचरा कर देते हैं। क्या कर देते हैं इसमें पता है? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला वो फॉर्मूला लगाते हैं जो इससे पहले लिखा हुआ है, और उनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि इस फॉर्मूले को लगाने के बाद में उसका आंसर 0 आ रहा है और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा है उसके बाद भी, क्योंकि b एक ही इसमें b1 क्रॉस b2 दोनों b उसमें कैसे हो जाएंगे, एक जैसे दिखेंगे, और स्टूडेंट उस चीज को ऑब्जर्व ही नहीं करता है
कि दोनों के बी तो एक जैसे दिख रहे हैं यार, तो दोनों बी एक जैसे दिख रहे हैं, तो बी वन और बी टू कैसे ले लूं मैं इसको? और अगर बी वन बी टू लूंगा और डिटरमिनेंट में या मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा, यहाँ पर क्या है, बी वन क्रॉस बी टू, तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा तो इन्फिनिटी नहीं बन जाएगा क्या? B1 और B2 अगर प्रोपोर्शनल हैं, वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर एंड यू टेक B1 क्रॉस B2, देन डिटरमिनेंट में दो रो एक जैसी हो जाएंगी ना। अब अगर दो रो प्रोपोर्शनल हो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, तो उसका आंसर क्या होता है? क्या होता है बताओ? इफ टू रोज आर सिमिलर और प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल इन ए डिटरमिनेंट, देन इट्स वैल्यू इज जीरो। तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, पर वो डिनोमिनेटर में जीरो आता है ना स्टूडेंट, उसको तो अवॉइड कर देता है। न्यूमरेटर में जो आ रहा है वो आंसर में लिख के आ जाता है और बोल देता है ये आंसर। मतलब उसको पता है कि मेरा डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, पर फिर भी अपना दिमाग लगा के कि टीचर को तो खाली है ना, अपना को आंसर लिखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जबकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी नहीं है पैरेलल, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये ध्यान देना आप यहां पे। इसलिए मैंने आपसे बोला इंपॉर्टेंट चीज यही है बी, और पैरेलल होने के कारण ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, नॉट दिस। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, इसलिए मैंने रेट से भी लिख दिया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन से इस फॉर्मूले का यूज करना होता है। B1 क्रॉस B2 मत लगा देना इसके अंदर। आपको बता देते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 इसी पर बेस्ड है, एग्जाम्पल 12, और एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 लिखा है, वहां पर शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर आप सोचो अगर शॉर्टेज डिस्टेंस लिखा होगा ना, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो आंसर जीरो आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, आंसर ही जीरो आ जाएगा। और शॉर्टेज डिस्टेंस जब भी लिखा होगा तो B1 और B2 पैरेलल, बोलो आगे लिखो। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस लिखा है तो B1 और B2 पैरेलल लिखो। कोई स्टूडेंट आगे क्या लिख बोलूंगा मैं? वन स्टूडेंट प्लीज राइट, मुझे उससे अच्छा लगेगा। अगर शॉर्टेज डिस्टेंस पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन में, तो B1 और B2 पैरेलल, नो वन इज राइटिंग। If two lines are parallel, I am asking you find the shortest distance, shortest distance between two lines, skew lines. ऐसी कंडीशन में B1 और B2 parallel, what happened? No one is getting what I am saying. Vedant Lokesh Verma is playing game with us, coming going, huh? Last minute he will come, and 10 minutes just now I saw Preeti Solanki left. They are busy in their own work. No one is in the class who knows, should tell me the complete the sentence. No one. Naman, Ankit, Palak, Vibhuti, are you present in the class? If yes, message here yes. The call is very much important for you, na? You should not attend the call. I'm getting here number of calls in between my classes. I'm not attending the calls because urgent work is to teach the student right now. तो बिना पिकअप किए तो नहीं होता, मेरे तो यहाँ पे आता रहता, लाइन लगी रहती थोड़ी थोड़ी देर में फोन की यहाँ पर। ओनली स्कूल के केस में मुझे स्कूल से अगर कॉल आता है स्कूल का, तो ही मैं उसको उठाता हूं। मैं पहले भी कई बार आपको ये बात बता चुका हूं। नमन, अंकित सलूजा इज देयर? What should be the complete sentence? If you have to find that shortest distance between two lines, then the B1 and B2 will be parallel or not? क्या B1 और B2 पैरेलल होंगे अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड आया है तो फिर इतनी देर लग रही है? देखो ऋषिता ने लिखा है, कितनी देर से पूछ रहा हूं मैं, क्या हो गया तुमको? इतनी देर से मैं पूछ रहा हूं कि मेरे सेंटेंस को कंप्लीट करो, तो नॉट पैरेलल बोलना था बस, कि अब लिख रहे हैं। वो ऋषिता ने लिखा है, वेरी गुड ऋषिता।
अरे B1 और B2 अगर पैरेलल होंगे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ डिस्टेंस आएगा। यही मैं समझा रहा हूं इतनी देर से। कहां हो तुम लोग? वेदांत से बातें कर रहे थे क्या? उसका कॉल आया था तो सब मिलकर कॉन्फ्रेंस कॉल करा था सभी ने। क्यों वेदांत, सारे बच्चे आपसे बात कर रहे थे क्या अभी? Mamta Patidar joined. Now Mamta Patidar in the class for the sake of formalities 10 minutes before. No need of such formalities. I am going to finish my course in next 10 days. After that, bye bye. We'll start the practical activities in the school. Your exam timetable is also assigned to you, no? It already given, sorry. Shared with you yesterday night. Pre-board. Now exercise 11.2. Exercise 11.2. Please take the screenshot. These are the total number of points. You can write it point number 7, different number 7. सॉरी 7.3 स्ट्रेट लाइन। मैंने 7 पॉइंट्स की थ्योरी पढ़ाई स्ट्रेट लाइन की, उसके बाद एक्सरसाइज 11.2 पे आ रहा हूं। दैट्स व्हाई हमारा कोर्स इस तरह से होता है कंप्लीट। आप ऑब्जर्व कर लो, अगर मैं चाहता तो लास्ट 4 दिनों में ये एक्सरसाइज भी स्टार्ट करके क्वेश्चंस भी करा सकता था। एक एक क्वेश्चन कराता, साथ में थ्योरी बताता, ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है, इसमें ऐसे होता है। ये 4 आप करना, 2 महीने कर दिए, 4 आप कर लेना। लेकिन थ्योरी में सारी चीजें समझाई जाती है, पहले फॉर्मूले लिखे जाते हैं, उसके बाद होता है। दिस इज द वे टू कंप्लीट द सिलेबस इन ए प्रॉपर वे। दैट इज माय थॉट्स ओनली। बट यू आर नॉट अटेंटिव, यू पीपल आर नॉट अटेंटिव। दैट्स व्हाई टीचर्स आर सेइंग क्या करना है इन बच्चों के लिए, इतना करते हैं, इनको तो अब रिप्लाई नहीं देना है, इनको फोन कॉल अटेंड करना है, इनको बार बार इधर उधर जाना है, आना जाना चलना है। शो दैट द 3 लाइंस विथ डायरेक्शंस कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके डायरेक्शंस कोसाइंस के प्रोडक्ट का सम 0 होता है। L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0। डायरेक्शंस कोसाइन दे रखी है, मतलब इनके स्क्वायर का सम तो 1 होगा ही, वो अपने को मतलब नहीं है उससे, वो तो होना ही अंडरस्टूड है। बिकॉज डायरेक्शन कोसाइन वर्ड्स आर यूज्ड मींस दैट sum of the square of DCS is 1. You please take the screenshot. L1 M1 N1 L1 equal to 12 by 13, M1 equal to minus 3 by 13 and N1 equal to 4 by 13, minus 4 by 13. This is L1 M1 N1. We can suppose it. You can see the numbers are same, denominator is same, only their sign are changed. 4 by 13, 12 by 13 and 3 by 13. L2 M2 N2. Then third line L3 3 by 13, M3 minus 4 by 13, N3 12 by 13. जस्ट नाउ यू टेक द अटेंडेंस। अभी अटेंडेंस लेना, अभी वाली अटेंडेंस काउंट की जाएगी 10:21 पर। राइट नाउ यू टेक द अटेंडेंस बोथ ऑफ यू, अनिमेश एंड मार्क, और टाइम भी लिख देना 10:22 पे जो हमने अटेंडेंस ली थी वो है ये। अब इसके बाद जो जाते हैं वो ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, दिख रहे हैं उनको मैं उसका नाम काट दूंगा इसमें से। वो बाद में जो आए वो भी मैंने ऑब्जर्व किया है। L1 L2 12 by 13, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तीनों का इसका इसके साथ, इसका इसके साथ प्रोडक्ट का सम 12 by 13 into 4 by 13 minus 3 by 13 into 12 by 13 minus 4 by 13 into 3 by 13 multiply 48
48 minus 36 minus 12 upon 169 equal to 0. This implies a line 1, line 1, line 2, line 3, DCS of, DCS of, DCS of line 1, line 2 and line 3. Now L2 L3, M2 M3 plus N2 N3. Four by 13 into 3 by 13 plus 12 by 13 into minus 4 by 13, 3 by 13 into 12 by 13. You can observe here 12 minus 48 plus 36 upon 169. This is also equal to 0. Also you can see L1 L3 plus M1 M3 plus N1 N3. 12 by 13 into 3 by 13 minus 3 by 13 into minus 4 by 13, both negative. Then minus 4 by 13 into 12 by 13. 36 plus 12. 36 plus 12 minus 48 upon 169. This is also equal to 0. This implies L1, this implies line 1 perpendicular to line 2, line 2 perpendicular to line 3, line 3 perpendicular to line 1. ये 0 आ रहा है ना, L1 L2 M1 M2 रिमार्क में लिखा रखा है मैंने आपको, L1 L2 M1 M2 N1 N2 अगर 0 आता तो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं. Therefore lines are perpendicular to each other. यही प्रूव करना है ना. म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब भी यही होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तीनों लाइन. L1 M1 N1 L2 M2 N2 ये IJK की जगह काम कर रहे हैं, मान सकते हो आप. L3 M3 N3 ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है. टेक द स्क्रीनशॉट. डन. $71 स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास. 71 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, मतलब 26 स्टूडेंट एब्सेंट हैं. $26 स्टूडेंट के नाम एब्सेंटीज में आना चाहिए, 26 27. ओके, लीव मीटिंग.